So, hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are practicing conditional clauses and I have given you the homework last time. So, we'll be going with that in the beginning and then we'll be talking about the clauses furthermore. So, the first sentence I gave you for translating in English that was अगर वह खाना पकाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा. So these were the sentences, these were the clauses or conditional clauses under zero conditional or first conditional. So mix out of zero or first conditional. So अगर वह खाना पकाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा. The first thing we need to know that which clause is this, zero conditional or first clause. Write in comment section. Is this zero or first? So this will be basically what? Answer it, everyone. Yes, everyone is writing in comment section. This is okay. You are writing first. Yes, yes. Vishnu ji, Atul ji, Deepa ji, Anamika ji, Sangam ji, Mini ji. Yes, this is first clause because there is nothing like scientific fact, universal truth in this or general truth in this case. So वह खाना पकाएगी. अगर वह खाना पकाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा. So there is a condition. If she cooks food, so that will be done in this way. If she cooks food, comma, I will not eat. First statement with if will go in simple present. So if she cooks food, comma, I will not eat. That's correct. If she cooks food, I will not eat. That's correct. All right. Next, kindly match it. Those who have submitted the answers, they will also match it, and those who haven't submitted, they'll be writing it on their notebook. अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं खेलने आऊंगा. सेकंड सेंटेंस इज अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं खेलने आऊंगा. If you play with me, this is also first conditional. If you play with me, comma, I will come to play. If you play with me, I will come to play. Just give me a moment. Yes. So the sentence was अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं खेलने आऊंगा. If you play with me, I will come to play. That will be the statement. Okay, Prasad ji. If you if I will only come if you play with me. अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं खेलने आऊंगा. If you play with me, I will come to play. That is also correct. And your Atul ji, you are writing, I will only come if you play with me. That's also correct. That you are adding the condition and on the basis of sense you are adding. I will only come if you play with me. That's good. Next. So आप ये भी कर सकते हैं अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं खेलने आऊंगा. इफ यू प्ले विद मी आई विल कम. प्ले नहीं हो सकता, आई विल कम टू प्ले करेंगे. ठीक है, फिर दीपा जी आपने थोड़ा इंटरप्रेट किया, सही कर लीजिएगा. ठीक है, खेलने आऊंगा तो कम टू प्ले वहां पे लगेगा. नेक्स्ट, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है. विच क्लॉज इज दिस? टेल मी. अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है. जीरो conditional or first conditional? This is zero, right? So this will be following simple present with if, and in the main clause as well we'll be making the sentence in simple present.
So if you heat the ice, it melts. वह पिघल जाती है. Simple. If you heat the ice, it melts. If you heat ice, it melts. That is also correct. अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं और करेंगे तो वह पिघल जाएगी और पिघल जाती है. आइदर इट इज इन रिटर्न इन करेंगे तो पिघल जाती है, पिघल जाएगी. इन द बोथ वे, वट एवर द सेंटेंस इन इज रिटन इन हिंदी, but it will be same in English. If you heat the ice, it melts. Yes, Deepaji, if you heat ice, it melts. It gets melt. Gets can also be used, but uh, melt is used as a verb. So melts is okay. Or you can say get melted, gets melted. Okay. After get, we use third form of the verb to make it a state. Okay, gets melted. If you heat ice, it melts or it gets melted. Get it done. Get it done दूसरा केस होता है करवाना, पिघलवाना. ऐसे थोड़ा यहाँ पे गेट्स. एक बताया था ना आपको कि गेट के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वो एक कंडीशन बन जाती है. जैसे कि मेरा हृदय टूटा हुआ बताया था, माई हार्ट इज ब्रोकन. मेरा हृदय टूट जाता है, माई हार्ट गेट्स ब्रोकन. मैं उदास हो जाता हूँ, आई गेट सैड. जहाँ पर वर्ब नहीं आता वहां पे डायरेक्टली लग जाता है, तो वो वाला. ओके. तो ये चीज आप याद रखेंगे. गेट इट डन तो काम करवाने के लिए होता है. जैसे मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड. ठीक है. तो ये आपका हो गया. नेक्स्ट आप करेंगे. तो इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और इफ यू हीट द आइस इट गेट्स मेल्टेड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट. अगर आप स्वस्थ खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे. इफ यू ईट हेल्दी फूड. अच्छा, लेट मी नो, दिस इज कंडीशन विच कंडीशनल, जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल, विच क्लॉज इज दिस? टेल मी. विष्णु जी, यू राइटिंग फर्स्ट. अतुल जी, यू राइटिंग फर्स्ट. सुजीत जी, यू राइटिंग जीरो. दीपा जी फर्स्ट. एवरीवन आंसर्ड. अगर आप स्वस्थ खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे. वेट फास्ट. मे बी जीरो. एनीवन एल्स? दिस सेंटेंस does have flexibility, feasibility. um Either you make it in zero or you make it in first clause. Both will be acceptable in language, because it can denote to the personal truth. I won't agree with the scientific fact, because बहुत सारे लोग हैं जो खाते रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते, है ना. कुछ भी खा लेते हैं वो. तो इसलिए हम इसको उस तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं कह सकते, या साइंटिफिक फैक्ट कहेंगे तो लंबे टर्म में कह देंगे कि हाँ बीमार पड़ जाओगे. ठीक है. तो यहाँ पर पर्सनल ट्रुथ आएगा आपका. जैसे आपको याद होगा, जो पहला आपको एग्जाम्पल कराया था, पढ़ाया था, तो जीरो कंडीशनल का कराया था कि अगर मैं लेट होता हूँ तो मेरे शिक्षक गुस्सा करते हैं. इफ आई एम लेट, तो वो एक्चुअली में यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, लेकिन पर्सनल ट्रुथ तो है ना. तो इसलिए मैं कह रहा था ये जो सेंटेंस है आपका, जीरो में भी जा सकता है और फर्स्ट कंडीशन में भी जा सकता है. प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं. चलिए, प्रायोरिटी के हिसाब से अगर मैं रखना चाहूँ तो जैसे हिंदी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हिंदी को हमने यहाँ पे उस तरह से नहीं रखा. सिंपल प्रेजेंट में हमने कहा कि अगर आप स्वस्थ खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे. तो उस हिसाब से तो मैं इसमें फर्स्ट कंडीशन बना सकता हूँ. या अगर ये बिल्कुल ऐसे बोला जाता ना कि अगर आप स्वस्थ खाना खाते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं, तब तो हम 100% प्रायोरिटी उसी को देते हैं. किसको? जीरो कंडीशनल को. क्योंकि तब वहां पर एक पर्सनल ट्रुथ पर ठप्पा लग गया है एक तरह से कि हाँ, जब भी आप क्या करते हैं, अ, स्वस्थ खाना खाते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं. सिंपल सी बात है. तो वहां पर तो 100% आपका जीरो कंडीशनल होता है. बट इस वाले केस में फर्स्ट कंडीशनल भी है और जीरो कंडीशनल में भी जा सकता है, अगर आपको लगता है सामने वाला पर्सन जो है अम, बहुत ज्यादा बेकार खाना खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, और जब अच्छा खाना खाते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं. तो इन दिस केस यू कैन यूज बोथ. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज.
तो हम करते हैं यहाँ पे। तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी थी? फर्स्ट कंडीशनल को, तो उसके साथ करेंगे हम। इफ यू ईट हेल्दी फूड, कॉमा, यू विल नॉट गेट इल या सिक, या यू विल नॉट फॉल सिक या इल। ठीक है, फॉल भी हो सकता है यहाँ पे, गेट भी हो सकता है। तो इफ यू ईट हेल्दी फूड, कॉमा, यू विल नॉट फॉल सिक। और इस वाले केस में मैंने कहा था कि सेकंड प्रायोरिटी जा सकती है जीरो कंडीशनल को। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी क्यों दी? क्योंकि यहाँ पर गागी गे वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, इसलिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि अगर आप स्वस्थ खाना खाते हैं तो बीमार नहीं पड़ते, तो 100% हम जीरो कंडीशनल करते हैं। इफ यू टेक हेल्दी फूड यू बिकम नॉट सिक। जुगाड़ इंग्लिश हो गया थोड़ा, बिकम नॉट लगा दिया आपने। या यहाँ पे सिंपल से बोलिए ना, यू डोंट गेट सिक, ये बोल सकते हैं अगर आप उसको जीरो कंडीशन में कर रहे हैं तो, सुरजीत जी। ठीक है, या डोंट बिकम सिक भी बोल सकते हैं, बट बिकम जो है वो बनने के संबंध में होता है ना, होने के संबंध में। यहाँ बीमार पड़ने की बात हो रही है, तो गेट सिक या फिर कंडीशन हो रही है ना, चेंज हो रही है कंडीशन। कंडीशन चेंज करने के लिए हम गेट का यूज करते थे, जो उसे पढ़ा है। गेट कोल्ड, है ना, गेट गेट हॉट, द टी विल गेट हॉट, राइट, ऐसे करके। द टी, द ग्लास विल गेट ब्रोकन, कंडीशन है। तो फॉल सिक भी हो सकता है, फॉल इल भी हो सकता है। तो इफ यू ईट हेल्दी फूड यू डोंट गेट सिक, अगर आप उसको जीरो कंडीशन में लेके जा रहे हैं तो। ओके, बट फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इसमें बोला कि किसको देनी चाहिए है हमें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम सेंटेंस ले जाएंगे, तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे देंगे, फर्स्ट कंडीशनल को, राइट। लाइक मी, सर, इफ आई ईट एनीथिंग आई नेवर गेट सिक, नेवर गेट सिक करेंगे। ऑल राइट, इफ यू टेक हेल्दी फूड यू डू नॉट गेट सिक, जी जी, डू नॉट गेट सिक या फॉल सिक। गेट जरूर लगाइएगा या फॉल जरूर लगाइएगा यहाँ पे, बीमार पड़ना के लिए फॉल भी लग जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। तो आई होप ये समझ में आया होगा फर्स्ट प्रायोरिटी हमने इसमें क्यों दी उसको, क्योंकि वो गा गी ये वाला कॉन्सेप्ट था। अगर यहाँ पे होता अगर आप अम, स्वस्थ खाना खाते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं, तो वहाँ पे 100% जीरो कंडीशन होता है। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ी आपको देखने को मिलेगी फिजिबिलिटी। um, लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगर वह आज पढ़ेगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा, अगर वह आज पढ़ेगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। ये तो फर्स्ट कंडीशनल ही है, क्योंकि कंडीशन आपको डिपेंड दे रखी है इसमें। अगर वह आज पढ़ेगा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा, बनाइएगा इसको। गेट इल्ड नहीं, गेट इल्ड नहीं होगा, इल आपका वर्ब है ही नहीं, तो इल्ड कैसे कर लेंगे? गेट, देखिए गेट के बाद जो वर्ब होता है उसमें थर्ड फॉर्म लगता है अनामिका जी। गेट हैप्पी, गेट सैड, इसमें थर्ड फॉर्म थोड़ा ना हो जाएगा। अगर इल हम वर्ब के फॉर्म में लें, तब जैसे होता वर्ब अगर, तो हम आप लोग कर सकते थे ना, इल्ड। ओके, इसका बनाएंगे आप लोग। ठीक है, तो कर लेंगे। इफ यू स्टडी टुडे ही विल परफॉर्म वेल, यू क्यों कर दिया उसमें? अगर वह आज पढ़ेगा, इफ ही स्टडीज होगा, इफ ही स्टडीज, अगर वह आज पढ़ेगा, अच्छे से था क्या पढ़ना यहाँ पे, अगर अच्छे से होगा तो इफ ही स्टडीज वेल कर सकेंगे। इफ ही स्टडीज वेल टुडे ही विल परफॉर्म वेल। अगर आज हुआ केवल तो इफ ही स्टडीज टुडे ही विल परफॉर्म वेल। ठीक है, इफ ही स्टडीज टुडे ही विल परफॉर्म वेल, दैट्स करेक्ट। स्टडीज होगा, ही के साथ स्टडीज आना चाहिए। इफ एनीवन इज इन डाउट हाउ कैन आई टाइप दिस फास्ट, इट्स बिकॉज ऑफ कॉपी पेस्ट। ओके, because you have submitted soft copies of your answer. If he studies today he will perform well. All right, next. um, अगर सूरज निकलेगा तो रोशनी देगा, which conditional is this, which clause is this, let me know.
अगर सूरज निकलेगा तो रोशनी देगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? हम्म यहाँ पर आपको सच्चाई दिख रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिख रहा है। बोथ नहीं है, बोथ नहीं है, नहीं बोथ नहीं है। बोथ बोथ तो तब उस वाले केस में होगा ना जब पर्सनल ट्रुथ वाला केस है। साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट बन ही नहीं सकता। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। सूरज निकलेगा तो रोशनी देगा। अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि बादल बादल हो जाएंगे तो, राइट, बट सूरज निकलेगा तो रोशनी तो होगी, या कितने भी बादल हों तब भी तो रोशनी होती है। रात और दिन में फर्क होता है ना। ये तो यहाँ पर आप एक इसको जनरल ट्रुथ में ले लेंगे। तो इफ सन राइजेस, है ना, ऐसे करेंगे। इट इट शाइन्स, इट लाइट्स कर सकते हैं। या रोशनी देने के लिए आप वो इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, जुगाड़ इंग्लिश। गिव्स जो किया है, गिव्स द लाइट, करेक्ट। लाइट्स भी करेक्ट, यहाँ पर लाइट 100% करेक्ट है, प्रकाश देना। ठीक है। इफ द सन राइजेस इट गिव्स लाइट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। और इफ द सन राइजेस इट लाइट्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। इफ द सन राइजेस इट गिव्स लाइट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है। इट सन शाइन्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इफ सन राइजेस इट इट शाइन्स कर सकते हैं। पर यहाँ पर शाइन, चमकना, आई गेस नहीं। सन इस शाइन्स ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सूरज इट शाइन्स, नहीं ये प्रेफरेबल नहीं है ये। उसको स्किप कीजिए, इसको मत कीजिए। लाइट की बात हो रही है ना, रोशनी देना की, तो इसलिए इफ द सन राइजेस इट गिव्स लाइट कर लीजिए, या इट लाइट्स कर लीजिए। इट गिव्स सनलाइट, हाँ ये करेक्ट है। इफ सन राइजेस इट गिव्स सनलाइट, सूर्य की रोशनी को सनलाइट कहते हैं। ये कर सकते हैं आप। ठीक है। सेंस क्या था? या सिंपल, इफ सन इफ द सन राइजेस इट गिव्स लाइट, या इट गिव्स द लाइट, या फिर इट लाइट्स, प्रकाश देना के लिए लाइट वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे आप। अगर तुम बारिश में भीगते हो तो बीमार हो जाते हो। देखिए, ये एक पर्सनल ट्रुथ को एम्फसाइज करके बोला गया है, तो यहाँ पे बताएंगे ये जीरो में जाएगा या फिर फर्स्ट में जाएगा। यहाँ पर एक ही केस पॉसिबल है, याद रखेंगे। यहाँ पर एक ही केस पॉसिबल है, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदी लिखा हुआ है, एक ही केस पॉसिबल है। एक ही केस पॉसिबल है। ठीक है। क्योंकि हिंदी के हिसाब से देखेंगे, फर्स्ट क्लास बोल रहे हैं आप। हिंदी मैं दोबारा बोल रहा हूँ उसका। अगर तुम बारिश में भीगते हो तो बीमार हो जाते हो। इसमें एम्फसाइज कर दिया है हमने। क्या बोल दिया है? कि अगर भीगते हो तो ये मेरे लिए पर्सनल ट्रुथ हो गया है। एग्जाम्पल याद कीजिए, फर्स्ट वाला जो, अगर मैं लेट होता हूँ तो टीचर गुस्सा करते हैं, वो वाला। ठीक है। यहाँ पर एक ही केस पॉसिबल है, जीरो वाला। फर्स्ट वाला आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि ये आपको पर्सनल, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं दिख रहा। तो आपने कहा कि यहाँ भाई कैसे कर देंगे आप। ठीक है। तो वो चीज, जैसे हमें पढ़ाया जाता है ना कि स्कूल्स वगैरह में जब आप पढ़ते हैं कंडीशनल, तो वहां पर आपको लैंग्वेज के बेस पर आप पढ़ाया नहीं जाता, तो वहां पर एक जनरल रूल याद कराया जाता है कि साइंटिफिक फैक्ट और जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, वहां पर आपको केवल लगाना है जीरो कंडीशनल। बाकी सब में आपको लगाना है अ, वैसे प्रेजेंट वाले में फर्स्ट कंडीशनल। तो वो वाला आप लेते हैं। बट हम यहाँ पे लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हम लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी, तो हम अपने हिसाब से बोलेंगे। हमारा पर्सनल ट्रूथ है तो हम उस हिसाब से आप ले लेंगे। ठीक है। तो इफ यू गेट वेट इन द रेन यू फॉल सिक, दैट्स करेक्ट। या इफ यू गेट वेट इन रेन यू विल गेट इल, सही है। ठीक है। तो यहाँ पर जीरो क्यों है समझिएगा। अगर मैं इसको बोलता कि अगर आप बारिश में भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो यहाँ पर तब मैं कह सकता था कि दोनों को हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट भी हो जाएगा, और फर्स्ट को प्रायोरिटी देते हैं हम पहले को, है ना। और जीरो भी हो जाएगा। पहले फर्स्ट को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वहां पर हमें दिख रहा है कि ये हम यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह सकते इसको। क्यों नहीं कह सकते? पहले तो हम वहां पर इसको एम्फोसाइज नहीं किया पर्सनल ट्रूथ के रूप में। पर्सनल ट्रूथ के रूप में एम्फोसाइज करने का मतलब क्या है कि हिंदी में ही आपने उसको क्या बोला, एक तरह से यहाँ पे लिख दिया कि अगर तुम भीगते हो तो बीमार पड़ जाते हो। ये हमने फैक्ट ले लिया एक तरह से, कि हमने जब भी तुम्हें देखा है तो तुम यही देखा है कि तुम जितनी बार भीगे हो तो उतनी बार बीमार पड़े हो। तो इसलिए हमने इसको वहां पर जीरो कंडीशनल में बना दिया है। ठीक। तो ये तो हिंदी से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश की। अब डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोलना है तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलोगे ना।
ठीक है, तो वो चीज पर्सनल ट्रुथ बन जाती है। ठीक है, ये पर्सनल ट्रुथ वाला आपको जनरली पढ़ाया नहीं जाता, क्लासेस वगैरह में जब आप लेते हैं तो वहां पर आपको ये बात बताई नहीं जाती। ठीक है, बट लैंग्वेज में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन यूज इट इन दिस वे। अगर हम इसे ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहे होते स्कूल्स में, तो हम शायद इसको इसी तरह से कर रहे होते। इफ यू गेट वेट इन द रेन यू विल फॉल सिक, ऐसे कर रहे होते, भले ही हिंदी इसकी इस तरह से लिखी होती। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लैंग्वेज के बेस पर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। और हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी किए थे, जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तभी आपको एक जो एग्जांपल बताया था, इफ आई एम लेट फॉर स्कूल आई माई टीचर गेट्स एंग्री। ठीक है, इफ यू गेट वेट इन द रेन यू गेट सिक, इज इट ओके और नॉट सर? हाँ, इफ यू गेट वेट इन द रेन यू गेट सिक, सही है। या फॉल सिक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कंडीशन है, एक तरह से स्टेट है, तो यहाँ पर गेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अनामिका जी ने किया, इफ यू गेट वेट इन रेन यू विल गेट इल। ये यू विल वाला यहाँ पर स्किप करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, दोनों तरफ प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है हिंदी। तो यानी ये क्या एम्फसाइज कर रहा है, ये एक ऐसा मीनिंग एम्फसाइज कर रहा है कि हमने हर बार देखा है, ये चीज हमने महसूस की है कि जब भी आप रेन में भीगते हैं तो आप बीमार ही पड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इसको जीरो कंडीशन में डाला है। ये चीज आप थोड़ा समझिएगा। ठीक है, लैंग्वेज बहुत ही ऐसी चीज है कि मतलब आप एक लॉजिक के साथ चल सकते हैं, है ना, एक तरह से जैसे यहाँ पे लॉजिक है पूरा कि हमने इसको क्यों डाला। नेक्स्ट, अगर आपने क्या लिखा, अगर आप डेली नहाओगे, नहोगे कर रहे हैं, नहाओगे तो शरीर से गंध नहीं आएगी। सर, इट इज विच क्लॉज? काफी लोग हैं। अच्छा, आप ही लोग बताइए ये कौन सा क्लॉज है? काफी लोग हैं जो बिना नहाए भी काम कर लेते हैं, नहीं नहाते, अब तो परफ्यूम वगैरह भी आने लगे हैं। ठीक है, अब मैंने हिंट भी दे दिया आपको। बताइए कौन सा क्लॉज है इसमें? अगर मैं इसको ऐसे बोलता, अगर आप डेली नहाते हो तो शरीर से गंध नहीं, नहीं डेली नहीं नहाते हो, ये होना चाहिए था ना, आपने क्या लिखा, आप डेली नहाओगे, नहीं नहाओगे ऐसा होगा ना, नहीं नहाओगे तो शरीर से गंध, अच्छा नहाओगे, अगर आप डेली नहाओगे तो शरीर से गंध नहीं आएगी, है ना, शरीर से गंध नहीं आएगी। कुछ लोगों के शरीर से गंध तब भी आएगी जब वो नहीं नहाएंगे, तब भी ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए इसको हम विंटर में होगी, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पहले देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज की प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद अगर इसको हम एम्फोसाइज करके लिखते हैं, अगर आप डेली नहाते हो तो शरीर से गंध नहीं आती है, तो वहां पर पर्सनल ट्रुथ वाला केस बनता है। पर्सनल ट्रुथ मतलब हमने एक्सपीरियंस किया है, तो वहां पर जीरो क्लॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा समझिएगा इन चीजों को, कि पर्सनल ट्रुथ वाला केस में दोनों तरफ जा सकती हैं बातें। लेकिन उसमें भी हम देखेंगे कि एक एक्सपीरियंस पे हमें दिख रहा है, या तो हिंदी ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन दे रखा होगा, उसके बेसिस पे हम चले जाएंगे इंग्लिश में, या तो हमारा एक्सपीरियंस होगा कि देखो हम देखा है कि ये पर्सन ऐसा करता है तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं करता है तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज आपने यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन के बेस पे जाऊं तो मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा फर्स्ट क्लॉज को। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी दे सकता हूँ जीरो को। ठीक है, और अगर ये ऐसे होता, अगर आप डेली नहाते हो तो शरीर से गंध नहीं आती है, तो यहाँ पर मैं इसको जीरो क्लॉज कह देता। ठीक है, बट सर विंटर में चलिए, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। पर्सनल ट्रूथ वाला केस, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल वे में पढ़ते तो मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, शायद आप उठा के ले आए ग्रामर बुक और कहेंगे सर देखिए इसमें तो साइंटिफिक फैक्ट लिखा हुआ है और यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, तो हमें ग्रामर पढ़ाना होता तो हम लैंग्वेज पढ़ा ही नहीं होते आपको। ठीक है, तो वहां पर पढ़ाया जाता है, हम यहाँ पर चीजों को फ्लेक्सिबल करके देख रहे हैं, लैंग्वेज जिस तरह से यूज होती है बातें उस तरह से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आगे देखेंगे। अ, तो ठीक है, अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी। ये तो 100% क्लियर ही होगा आपको। सर, विष्णु जी डज नॉट ईट इन क्लास, द क्लास डज नॉट गो स्मूथली। इफ विष्णु जी डज नॉट ईट इन क्लास, क्लास क्यों नहीं चलेगी स्मूथली? क्लास तो स्मूथली चलेगी। इसको आपने जीरो कंडीशन में हिम्मत कैसे हुई आपको डालने की? क्लास
Class must go smoothly, even though he does not eat. He does not eat. First, if they don't come on time, the train gets miss. Train gets miss कैसे? पहली बात आप फिर से, मिस क्या है यहाँ पे? मिस वर्ब है, क्या है? ट्रेन छूट जाएगी, किसकी छूट जाएगी? ये भी थोड़ा साइंस के आधार पर देखेंगे तो कर सकते हैं। सब्जेक्ट हिडन है यहाँ पे। और जैसे पढ़ता हूँ कम लेकिन अगर तुम अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी। छूट जाएगी के लिए लीव भी कर सकते हैं। इफ दे डोंट रीच ऑन टाइम, द ट्रेन विल लेफ्ट किया है उन्होंने, संगम जी ने। रॉन्ग है यह, क्योंकि विल लगा रहे हैं और आप लेफ्ट कर रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेफ्ट तो सेकंड या थर्ड फॉर्म है। इफ दे डोंट रीच ऑन टाइम द ट्रेन विल लेफ्ट, इट इज रॉन्ग। ठीक है, छूट जाएगी। योर ट्रेन कर सकते हैं, यस, योर ट्रेन भी कर सकते हैं यहाँ पे। योर ट्रेन विल लीव, या फिर यू विल मिस द ट्रेन भी कर सकते हैं यहाँ पे। यू ऑल्सो एक्सपीरियंस तुलजी वंस। इफ दे डोंट कम ऑन टाइम, योर ट्रेन विल लीव, या ट्रेन भी कर सकते हैं गेट के साथ। ट्रेन छूट जाएगी कैसे रहेगा? गेट के साथ कैसे करेंगे? ट्रेन छूट जाएगी, विल गेट लेफ्ट। नहीं, गेट के साथ तो मुझे तो नहीं दिख रहा है बन जाएगा इसमें। गेट के साथ कंडीशन होगी ना यहाँ पे। गेट डिस्पर्स्ड कर सकते हैं चाहे तो। डिस्पर्जल का गेट, गेट डिस्पर्स्ड, है ना? विल गेट डिस्पर्स्ड कर सकते हैं आप। ठीक है। विल गेट डिस्पर्स्ड। डिपार्ट अपने आप में ही है, बढ़ना प्रस्थान करना, तो वहां पे विल गेट डिपार्टेड मत कीजिएगा ज्यादा। ठीक है। तो यहाँ पर आप, हाँ, एक और किसी ने किया है, द ट्रेन विल बी लेफ्ट। हाँ, ये कर सकते हैं, ट्रेन विल बी लेफ्ट, ये आपका पैसिव वॉइस में आ सकता है। छोड़ी जाएगी, ट्रेन छोड़ी जाएगी। ट्रेन छोड़ी जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। वैसे प्रायोरिटी आप इसी को दीजिए, विल लीव को ही। ठीक है, ओपन नहीं रहा। द ट्रेन विल बी डिपार्टेड, विल डिपार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। प्रस्थान करना ही होता है ना, ट्रेन तो चल रही है ना खुद। ठीक है, ट्रेन विल लीव फ्रॉम हियर एट, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आप विल बी ना कीजिए पैसिव में, को डायरेक्टली वो बन जाता है उसके साथ। ठीक है, विल बी लेफ्ट या विल बी डिपार्टेड को प्रायोरिटी मत दीजिए। विल डिपार्ट कर सकते हैं, द ट्रेन विल डिपार्ट या द ट्रेन विल लीव। ठीक है। ठीक है, जहां पर हमारा नॉर्मल बन रहा होता है वहां जरूरी नहीं होता है गेट लगाना ही लगाना है। गेट हमने बोला था, जब कंडीशन चेंज होती है और नहीं बन रहा होता, वहां पे जरूरत होती है गेट लगाने की। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं सेंटेंस को। अगर वे समय पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी। इफ दे डोंट रीच ऑन टाइम, द ट्रेन विल लीव, है ना? या फिर यू विल मिस द ट्रेन, ऐसे भी कर सकते हैं। या योर ट्रेन विल लीव, दैट इज ऑल्सो करेक्ट सेंस के आधार पर। या यू विल मिस द ट्रेन, ट्रेन छूट जाएगी, यू विल मिस द ट्रेन। सिंपल। इफ यू डोंट गेट इफ यू डोंट रीच ऑन टाइम, द ट्रेन विल लीव, या फिर यू विल मिस द ट्रेन। आगे बढ़ेंगे। अगर वे कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे। अगर वे कोशिश करेंगे, ये भी बताइए कौन सा क्लॉज है? 100% एक ही आंसर होना चाहिए इसमें तो, है ना? अगर वे कोशिश करेंगे, विष्णु जी आंसर फर्स्ट, यस, दिस इज फर्स्ट क्लॉज। अगर वे कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे। राइट। इफ दे ट्राई दे विल, अब गेट के पीछे पड़ गई है नाम, क्या जी लगता है? दे विल गेट सक्सीड, गेट सक्सेस कीजिए। अच्छा, अतुल जी, हाँ नाम क्या जी? दे विल गेट सक्सीड। सक्सीड एक्चुअली में वर्ब है या नाउन है, बताइए? सक्सेस कर दीजिए ना, गेट सक्सेस। या सक्सीड लगा रहे हैं तो सक्सीड, गेट के बाद सक्सीड कैसे लगा सकते हैं? सक्सीड इज नाउन और वर्ब। चलिए।
इफ दे विल ट्राई, दे विल ट्राई, दे विल क्यों लगा रहे हैं? दे विल गेट सक्सेस। इफ ही ट्राइज ही विल डेफिनेटली सक्सेस। ये था ना। देखो ही कैसे कर दिया। सक्सीड बताइए नाउन है या वर्ब है? टेल मी एवरीवन। वर्ब है। और वर्ब है तो गेट के बाद कैसे आप लगा सकते हैं? गेट V1 कैसे लगा सकते हैं? और ऑलरेडी हमारे पास इसके लिए हमारे पास दे रखा है सफल होना के लिए, तो सक्सेस लगा सकते हैं। फिर भी अगर मन है तो सक्सीडेड कर सकते थे, बट गेट के बाद आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, ये याद रखेंगे, ठीक है? गेट सक्सीड नहीं करेंगे। आपने सुना होगा लेट्स गेट स्टार्टेड होता है या स्टार्ट होता है, बताइए। लेट्स गेट स्टार्टेड होता है या स्टार्ट होता है? लेट्स गेट स्टार्ट या लेट्स गेट स्टार्टेड? सुना है कभी? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्ट होता है। अच्छा, लेट्स गेट स्टार्ट होता है। अरे भैया, तो बहुत ही बड़ा चेंज हो गया, तो लेट्स गेट स्टार्ट होने लगा। लेट्स गेट स्टार्ट या स्टार्टेड, अब आप चेक कीजिएगा इसे, ठीक है? अभी चेक कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड वर्सेस लेट्स गेट स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट होगा वो तो, हाँ बिल्कुल सही है वो। लेट्स स्टार्ट हम एग्री कर रहे हैं, हम तो गेट वाला बोल रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड या लेट्स गेट स्टार्ट? और दो तीन लोगों ने इकट्ठे बोल दिया तो बड़ा बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया। लेट्स गेट स्टार्टेड होगा या स्टार्ट? फेमस डायलॉग को कैसे, तो फेमस डायलॉग कैसे आपने सुना? लेट्स गेट स्टार्ट भी सुना है? बताइए सर। मैम, सब लोग स्टार्ट ही बोल रहे हैं। अच्छा, दीपा जी ने बोला है। ऐसे तो गेट के बाद वी थर्ड आता है, बिल्कुल वी थर्ड ही आता है। ये गेट स्टार्ट कहाँ पे सुना है? हमें वीडियो भी भेजिएगा जरा, हम भी सुना। ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड होना चाहिए, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करें। ठीक। तो गेट के बाद ये याद रखेंगे, गेट इट स्टार्टेड नहीं, लेट्स गेट इट स्टार्टेड नहीं, वहां पे तो शुरू करवाना हो जाएगा फिर। समझिए ना, गेट गेट इट डन वाला कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं यहाँ पर। और मैं बोल रहा हूँ केवल गेट के बाद या तो नॉन वर्ब आएगा, या तो नॉन वर्ब मतलब वो आपका वर्ब नहीं होगा। वर्ब नहीं होगा तो उसमें कोई हमें थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं। या तो वर्ब आएगा तो थर्ड फॉर्म के साथ आएगा। ठीक है। यस, स्टार्टेड इज राइट। स्टार्टेड ही होगा। जो लोग स्टार्ट बोल रहे हैं उसको सर्च करके लाइएगा आप। ठीक है। हम भी देखेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड होता है, यानी गेट के बाद हमेशा हम, जब वर्ब आएगा तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे गेट के बाद, याद रखेंगे इस चीज को। गेट इट डन वाला कॉन्सेप्ट दूसरा है, वो कॉन्सेप्ट ये है। ये हमने गेट और थर्ड फॉर्म क्या कॉन्सेप्ट है कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, जैसे टूट जाता है, बिखर जाता है ना? मतलब कोई कंडीशन चेंज हो जाती है, एक कंडीशन है, जैसे मान लो अभी गिलास रखा हुआ अच्छे से, अब वो टूट जाता है या टूट जाएगा तो गेट ब्रोकन करेंगे, है ना? और गेट इट डन वाला क्या है? मान लो मैं गिलास तोड़वाऊंगा अतुल जी से, ठीक है? विष्णु जी का गिलास है, हम तोड़वाएंगे अतुल जी से। तो आई विल गेट द गिलास ब्रोकन बाई अतुल जी। आई विल गेट द गिलास ब्रोकन, मैं गिलास तोड़वाऊंगा। आई विल गेट द गिलास ब्रोकन, है ना? बाई अतुल जी, सॉरी बाई विष्णु जी। अरे बाई अतुल जी था ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इज प्रॉपर वे टू राइट, यस दैट्स करेक्ट। तो ये गेट इट डन वाला कॉन्सेप्ट अलग है, याद रखेंगे, और गेट प्लस बी थर्ड वाला कॉन्सेप्ट अलग है। ये आपका कंडीशन जब चेंज होती है, यानी स्टेट चेंज होती है किसी चीज की, तब उसको करते हैं, ठीक है, जनरली। और जहां पर बिना गेट के काम चल रहा है वहां पर हम गेट वहां पर डालने की कोशिश नहीं करेंगे, बस बिना गेट के काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वे कोशिश करेंगे तो जरूर सफल होंगे, इसका बताते हैं। इफ दे ट्राई दे विल डेफिनेटली सक्सीड भी सही है। इन्होंने लिखा है दे विल श्योरली सक्सीड, ये भी करेक्ट है। या दे विल गेट सक्सेस भी करेक्ट है। या दे, जरूर के लिए आप यहाँ पे मस्ट का यूज भी कर सकते थे। इफ दे ट्राई दे मस्ट,
सक्सीड, है ना, या मस्ट गेट सक्सेस, या ये भी सही है, दे विल डेफिनेटली सक्सीड, दे विल श्योरली सक्सीड। ये सब आपके सही होगा। एक जनरल बता देता हूँ, जनरल ये